So hey guys, in this video lecture we are going to study about differentiation. So before moving forward in this lecture, first of all we have to understand what exactly the differentiation is. Okay, so y is equals to f of x is the function, y is equals to f of x is the function, and first order derivative can be represented as dy by dx. So dy by dx is the first order derivative, dy is change in y and dx is change in x. So dy is change in y and dx is change in x, and dy by dx is change in y with respect to change in x, and here change in x is approximately equals to 0. Change in x is approximately equals to 0 but not exactly equals to 0. Okay, there is difference between exact and approx. Here x is approximately equal to 0, not exactly, and dy by dx means change in y with respect to change in x. So let me elaborate through example so that you can understand in a better way. So let's take an example of a square. So here area of a square is y, and side of square is x. Area equals to y and side of square equals to x. So एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर. एंड हियर एरिया क्या है? y, साइड है x. So y is equals to x square. Y is equals to x square is the formula for area of a square. So now take derivative on both the side. dy by dx equals to d by dx of x square. So यार कुछ चीज़ें इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव के जो बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होगी, वो इस लेक्चर के लास्ट तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इट इक्वल्स टू 2x. सो डी वाई बाई डी एक्स. सो हियर 2x क्या है? 2x क्या है? चेंज dy by dx. Here dy by dx is change in area y with respect to change in side x. So इससे फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि dy by dx क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन ऑफ x with respect to change in dimension of y. So in terms of area of square, dy by dx क्या आउटपुट देगा? चेंज इन dy by dx का आउटपुट क्या होगा? चेंज इन एरिया y with respect to change in side x. So I hope you understand what exactly the meaning of dy by dx is. Okay. So let's move towards our next topic, that is derivative of some standard functions. So differentiation, derivative इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो की फॉर्मूलाज हैं वो यही है. इन दो टेबल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो की फॉर्मूलाज हैं इन चैप्टर डेरिवेटिव्स. सो अगर आपको डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है, सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज. सो ये आपको अंडरस्टैंड करना है एंड रिवाइज अंडरस्टैंड करना है एंड रट लो, कैसे भी करो बट रटना है. ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको यही फॉर्मूलाज यूज़ करना है. ठीक है, सो हम एक एक करके सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ आपको यार नोट डाउन भी करना है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो. एंड आई होप कि आपने इससे पहले जो टॉपिक स्टडी किया वो भी आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा. ओके, सो नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर
एफ डैश ऑफ एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. And derivative of any constant function, derivative of any constant function. So here constant c derivative. So derivative of any constant function d by dx of constant, it always equals to 0. So d by dx of c is equals to 0. d by dx of any number, let's take an example of 3 is the number, is equals to 0. Derivative of 5, derivative of a, d by dx of a is equals to 0. So किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. कांस्टेंट अल्फाबेट्स या फिर किसी भी टाइप के अगर कोई भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. सो ये की पॉइंट है, आप लोग को ये याद रखना है. नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n. Derivative of, so y is equals to x to the power n, and derivative of x to the power n. So derivative of x to the power n क्या होता है, so ये n आ जाएगा फ्रंट में and x to the power होगा n minus 1. सो ये भी एक बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव का. इस फार्मूला का यार काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इस चैप्टर में, ठीक है. सो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इस फार्मूला के ऊपर कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर अगर 5 है, कि फार्मूला का क्या था कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है. सो ये फार्मूला डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है. सो dy बाई डी एक्स is equals to d by dx of x to the power 5. It is equals to 5 into x to the power 5 minus 1, and it is equals to 5 into x to the power 4. So dy by dx it is equals to 5 into x to the power 4. जो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूलाज है डेरिवेटिव्स के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलाज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स. एंड यार इन फॉर्मूलाज का कोई भी आपसे प्रूफ नहीं पूछने वाला, ठीक है. सो प्रूफ के चक्कर में जाना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है. सो ये डायरेक्ट फार्मूला से आप याद करके भी रख सकते हो इन्हें, ठीक है. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है. सो इसी तरीके से कॉस एक्स टैन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके. So now we move towards derivative of exponential function. So y is equals to e to the power x. So derivative of exponential function is remain as it is, okay. So dy by dx is equals to d by dx of e to the power x, d by dx of e to the power x, and it remains as it is. It remains as it is, okay. And derivative of a to the power डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स. सो इन दोनों सेंटेंस में यार डिफरेंस है, इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस है. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे है कांस्टेंट, ओके. सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टू द पावर एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए टू द पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स. सो इसका डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स रिमेन एज इट इज इंटू लॉग ऑफ ए. सो ये भी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद करके रखो, ठीक है.
सारे फॉर्मूले जितने उस टेबल में है वो सारे आपको नोट डाउन करके रिवाइज करना है ताकि आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रहे. ओके, नाउ ये 2 फॉर्मूलाज कवर हो चुके हैं. नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x so now derivative of log x dy by dx, derivative of log x is equals to 1 upon x. so dy by dx. so एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर log 5 है, ठीक है, सो dy by dx, इसका आंसर क्या आएगा? d by dx of log 5. एंड डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 by x. सो डेरिवेटिव ऑफ log 5 क्या होगा? 1 by 5. ठीक है. एंड डेरिवेटिव y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a. तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे बेस होता है e, यहाँ पे है डेक. यहाँ पे बेस क्या है? a इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर बेस है, ठीक है. सो log x टू द बेस कांस्टेंट, log x टू द बेस a. सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a क्या होगा? d by dx ऑफ log x टू द बेस a is equals to 1 upon x log a. so derivative of x to the base a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x into log a. ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सो नाउ 3 टर्म्स हमें डिस्कस करना है, 3 फॉर्मूलाज. डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 upon x, 1 upon x to the power n, and third one is root x. Okay, so here dy by dx, d by dx of 1 by x. एक इंडाइसिस का फॉर्मूला होता है कि 1 upon a टू द पावर, अगर 1 upon a है तो इसके पावर में क्या होता है? +1. एंड अगर इस a को अगर हम न्यूमरेटर में अगर लेके जाए, अगर a को हम ऊपर लेके जाए, देन दिस +1 इज कन्वर्ट्स इनटू अ -1. सो ये इंडाइसिस का फॉर्मूला था, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है. सो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x टू द पावर -1. एंड देन इसके बाद जो डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो जो -1 है वो आ जाएगा फ्रंट में इंटू x टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू x टू द पावर -2. इट इज इक्वल्स टू -x टू द पावर -2. इट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x स्क्वायर dy बाय तो dy by dx क्या होगा? इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x स्क्वायर. ओके, सो जो सेकंड फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x टू द पावर n. सो जो ये इंडाइसिस का फॉर्मूला से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -n. सो dy by dx इट इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x to the power -1. so dy by dx of, so n आ जाएगा फ्रंट में x to the power -n -1. so it is equals to -n x to the power n plus 1 dy by dx. so ये है सेकंड फॉर्मूला. एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x, y is equals to root x dy by dx. सो रूट x को हम x टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो x टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू रूट x. ठीक है. सो नाउ इसको डेरिवेट कर देंगे. सो 1/2 आ जाएगा फ्रंट में x टू द पावर
1/2 minus 1, here 1/2 into x to the power minus 1/2, 1/2 into 1 upon x to the power 1/2, it is equals to 1/2 into 1 upon root x, it is equals to 1 upon 2 root x dy by dx. सो ये 3 फार्मूलाज भी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. जितने भी फार्मूलाज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए, स्टैंडर्ड फंक्शन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एंड बेसिक फार्मूलाज आप इन्हें कह सकते हो. इन्हीं फार्मूला से जितने भी डेरिवेटिव के जो अदर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं. ठीक है. सो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में पढ़े वो आपके क्लियर होंगे. सो यार अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो मेक श्योर यू लीव अ लाइक डन एंड सब्सक्राइब टू चैनल मेरिट लर्नर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.